پاکستان اور چین کے اسٹریٹجک تعلقات اعتماد، غیر متزلزل حمایت اور مشترکہ عزم کی مثال۔ ہماری منفرد اور گہری دوستی حالات اور عالمی چیلنجز میں بھی مضبوط ہے۔ دونوں افواج پائیدار شراکت داری اور علاقائی استحکام کو فروغ میں اہم کردار ادا کرتی رہیں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا چین کی فوج کے 98ویں یوم تاسیس پر تقریب سے خطاب۔ چینی فوج کو یوم تاسیس کی مبارکباد۔ چین کی دفاع و سلامتی میں فوج کے کردار کی تعریف۔ فیلڈ مارشل نے پاک چین اسٹریٹجک تعلقات پر بھی روشنی ڈالی۔ چین کے سفیر کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف۔ جی ایچ کیو میں چین کی فوج کی یوم تاسیس کی تقریب میں سفیر جانگ زیڈونگ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ سفیر نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب میں تینوں مسلح افواج کے افسران، چینی دفاعی اتاشی اور چینی سفارت خانے کے حکام کی شرکت۔ ISPR ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کل سے پاکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ مسعود پزشکیان صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفود کی سطح پر گفتگو کریں گے۔ صدر کی حیثیت سے مسعود پزشکیان کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ایرانی صدر کے دورے سے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا دورہ پاکستان انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان بہترین تعلقات مختلف جہتوں پر قائم ہیں۔ حالیہ مہینوں میں پاک ایران دو طرفہ تعلقات میں مزید بہتری آئی ہے۔ خطے میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے ایرانی صدر کا دورہ اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان آ رہے ہیں۔ ایرانی صدر پاکستانی صدر سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ بھارت آپریشن مہادیو کے نام پر معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ بھارت الزام ڈال کر اصل ذمہ داری سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ پاکستان نے بھارتی الزامات کو دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ بھارت نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر حملہ کیا۔ ہم نے 25 مئی کے اقدامات سے ثابت کیا کہ ہر مہم جوئی کا جواب دے سکتے ہیں۔ پاکستان مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ طویل مدتی شراکت داری کے لیے بھی پرعزم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کی ملاقات۔ وزارت صحت سے متعلق امور پر گفتگو۔ وفاقی وزیر نے وزیر اعظم کو صحت کے شعبے میں جاری منصوبوں اور اصلاحات پر پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی کراچی میں ملاقات۔ بلوچستان کی ترقی، امن و امان کی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو۔ عوامی فلاح، بنیادی سہولتوں کی فراہمی اور ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ بلوچستان کے عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ صدر آصف علی زرداری کی وزیر اعلیٰ کو ہدایت۔ صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سالم الزعبی کی ملاقات۔ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز کی UAE کے سرمایہ کاروں، اداروں اور کاروباری برادری کو سرمایہ کاری کی دعوت۔ صوبے میں تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور توانائی کے شعبوں کو جدت کی راہ پر گامزن کیا۔ پنجاب بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کے ساتھ سرمایہ کاری کے لیے بہترین انتخاب بن چکا ہے۔ مریم نواز شریف۔ عرض پاکستان تجھے سلام۔ اگست آزادی کا مہینہ، ملک بھر میں تاریخی جشن کی تیاریوں کا آغاز۔ اس سال 14 اگست اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا جائے گا کہ دشمن کو ہر میدان میں شکست دی جائے گی۔ مارکہ حق کے شہیدوں کو خراج عقیدت، غازیوں اور جانبازوں کو سلام پیش کیا جائے گا۔
पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत और वतन अजीज को पुरअमन मुस्तहकम बनाने के लिए कौम का अज़्म पहले से ज्यादा मजबूत और तवाना। मार्का हक में फतहयाबी का जश्न रवां साल यौम आज़ादी पहले से ज्यादा मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। पाकिस्तानी कौम ने साबित किया कि वो अपने वतन पर कोई आंच नहीं आने देंगे। माए कराची नुमाइश का इनेकाद अहम इक़दाम है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। वैसे भी अगस्त का महीना है, 14 अगस्त का, और आज़ादी के दिन ये बड़ी खुशखबरी है। बहुत खुशी हुई है, पेट्रोल 7 रुपए कम हो गया। गवर्नमेंट ने जो है ना 7 रुपये पेट्रोल के रेट में कमी लेके आया हुआ है। हम लोगों के लिए काफ़ी सहूलत है जी इससे। अच्छी बात है गवर्नमेंट की, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट को। अगस्त आज़ादी और खुशहाली का महीना, कौम के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे की नुमाया कमी का ऐलान। नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत मामूली इजाफे के बाद डीजल की नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की ज़ेर सदारत वज़ारत तिजारत का जायज़ा इजलास। सेक्टरल एक्सपोर्ट काउंसिल्स को फ़आल बनाने और निजी शोबे से मुशावरत का अमल तेज़ करने की हिदायत। बरामदी मनसूबाबंदी में मसनूई ज़हानत और डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर। उभरती मंडियों के लिए मखसूस बरामदाती मनसूबे तैयार किए जाएँ। तिजारती रुकावटों से निपटने के लिए ट्रेड अलर्ट सिस्टम कायम किया जाएगा। जाम कमाल। खुसूसी अफराद की देखभाल मुआशरे की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। खुसूसी अफराद की फलाह व बहबूद हुकूमत की तरजीह है। बलोचिस्तान में तख्फीफ गुर्बत के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। समाज से महरूम बच्चों को बाइख्तियार बनाने के लिए हर वक्त कोशां रहेंगे। इशारों की ज़बान में तालीम और हुनर की तरबियत दी जाएगी। वफाकी वज़ीर तख्फीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ सैयद इमरान अहमद शाह का कोयटा में तकरीब से खिताब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात। सियासी सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और अमन व अमान पर गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की और सिक्योरिटी के लिए मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है। फैसल करीम कुंडी। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें ज़रूरी हैं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी तरक्की का हुसूल मुश्किल है। खालिद हुसैन मगसी। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवार चौधरी की हिदायत पर फेरी सर्विस के इजरा की कोशिशें तेज़। डीजी पोर्ट्स एंड शिपिंग की वज़ीर बहरी अमूर को फेरी सर्विस के लाइसेंस के इजरा पर ब्रीफिंग। फेरी लाइसेंस का इजरा 6 माह के बजाय 1 माह में होगा। लाइसेंसिंग के अमल को डिजिटल और सिंगल विंडो निज़ाम में मुंतकिल करेंगे। ईरान इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए नया सफरी मुतबादल दस्तियाब होगा। चंद हफ्तों में फेरी सर्विस का रोड मैप जारी करेंगे जुनैद अनवार चौधरी। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की सदारत में यौम इस्तेहसाल की तैयारियों से मुतालिक इजलास। मुतल्लिका महकमों को यौम इस्तेहसाल मौसर तौर पर मनाने के लिए हम आहंगी के साथ काम करने की हिदायत। 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय इक़दामात आलमी क़वानीन सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी हैं। कश्मीरी अवाम की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाई जाएगी। पाकिस्तानी कौम जम्मू व कश्मीर के मसले के मुनसिफाना हल के लिए जिद्दोजहद जारी रखेगी। अमीर मकाम। इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सेमिनार। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम हमेशा कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े रहे हैं। मसला कश्मीर का हल सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। पाकिस्तान ने हमेशा भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून का सेमिनार से खिताब। नवाज शरीफ सबसे सीनियर कौमी रहनुमा और सियासतदान के तौर पर अपना सियासी किरदार अदा करते रहेंगे। सियासत में नवाज शरीफ के ना आने का मन घड़त जुमला गलत तौर पर मुझसे मंसूब किया गया। नवाज शरीफ पार्लियामान की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। सियासत से उनकी लाताल्लुकी का सवाल ही पैदा नहीं होता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी।
पाकिस्तान और अमेरिका तारीखी तिजारती मुज़ाकरात की कामयाब तकमील, डिजिटल दुनिया में इक़्तिसादी सिफारतकारी का नया बाब रकम। क्रिप्टो और ब्लॉक चेन के वज़ीर ममलकत बिलाल बिन साकिब की ट्रंप की डिजिटल मशावरती काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात। आलमी सतह पर क्रिप्टो पॉलिसी की हम आहंगी और पाकिस्तान के वेब 3 जिद्दत के इलाकाई मरकज़ बनने के मंसूबों पर बातचीत। क्रिप्टो कानून साजी में ताउन के इम्कानात पर गौर। मशरक़ वस्ता के लिए अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव वटकॉफ आज गजा का दौरा कर रहे हैं। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर माइक हकाबी भी उनके हमरा होंगे। अमरीकी नुमाइंदे गजा में खुराक की तरसील का मुआयना करेंगे। दोनों हुक्काम गजा में मौजूदा खुराक की तकसीम के मकामात का मुआयना करेंगे। मज़ीद खुराक पहुँचाने और फ़लस्तीनियों से मिलकर ज़मीनी सूरत हाल मालूम करेंगे। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कैरोलिन लियोट। अमेरिका के साथ टैरिफ मुआहिदा पाकिस्तानी बरामदात के लिए नए मौके फराहम करेगा। पाकिस्तानी बरामदात पर अमरीकी मार्केट में 19% टैरिफ लागू होगा। ये फैसला अमरीकी हुक्काम के मुतवाज़िन नुक्ता नज़र की अक्कासी करता है। हुकूमत पाकिस्तान सरमायाकारी, मसनूई ज़हानत, क्रिप्टो करेंसी, मादनियात, तवानाई और दीगर शोबों में अमरीका के साथ मज़ीद मुस्बत रवाबित और करीबी ताउन की मुंतज़िर है। वज़ारत ख़ज़ाना। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी काम कर गई। भारत ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। भारतीय सरकारी रिफाइनरीज ने रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दी। भारतीय रिफाइनरीज ने गुज़श्ता हफ्ते रूसी खाम तेल के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिया। अब ये इदारे अबूधाबी और मगरबी अफ्रीकी ममालिक से मुतबादिल ग्रेड्स की खरीदारी कर रहे हैं। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स। अमरीका का मुख्तलिफ ममालिक पर आज से तिजारती टैरिफ नाफिज करने का ऐलान। जनूबी एशिया के 3 बड़े मुल्कों में से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रियायत 19% टैरिफ आयत। भारत पर 25 और बांग्लादेश पर टैरिफ की शरह 20%, जनूबी अफ्रीका पर 30, स्विट्जरलैंड पर 39%, इसराइल और तुर्की पर 15% टैरिफ आयत। इख्तिलाफात के बायस कनाडा पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 35% कर दिया। भारत के साथ इख्तिलाफात फौरी तौर पर हल नहीं हो सकते, तर्जुमान व्हाइट हाउस। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इजरायली फोर्सेज की बमबारी, मजीद 15 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। खान यूनिस में इमदादी मरकज़ के करीब फायरिंग से 7 फ़लस्तीनी शहीद, 70 ज़ख्मी। देरुल बलाह और अलमवासी में इजरायली ड्रोन हमले में 8 फ़लस्तीनी शहीद। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव वटकॉफ और इसराइल में अमरीकी सफ़ीर का दौरा गजा। इमदादी मराकज़ गए और खुराक के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों से बात की। बरतानिया और फ्रांस के बाद मजीद यूरोपीय मुल्कों का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इंदिया। मगरबी एशिया की सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं। पुर्तगाल एक खुद मुख्तार मुल्क है, आइंदा माह फ़लस्तीन को तस्लीम करने की तैयारी में है। पुर्तगाली वज़ीर ख़ारिजा, अगर 2 रियासती अमल के लिए मुज़ाकरात शुरू न हुए तो जर्मनी फ़लस्तीन को तस्लीम करने पर मजबूर होगा। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा। वज़ीर आला मरियम नवाज की चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98वें यौम तासीस पर चीनी हुकूमत, अवाम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। चीन की मुसल्लह अफवाज का कौमी और आलमी अमन में किरदार काबिल तहसीन है। अपने अहली भाई को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान चीन दिफाई इश्तराक लाजवाल दोस्ती की रोशन अलामत है। मरियम नवाज। आलूदगी फैलाने वालों से निपटने के लिए कानून बनाने वाला पंजाब मुल्क का पहला सूबा बन गया। पंजाब में जो आलूदगी फैलाएगा जुर्माना भरेगा। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी से माहौलियाती कानून में नई तजावीज़ शामिल। पंजाब की पहली डिजिटल क्लाइमेट मूवमेंट का आगाज़। 10 जोन्स की डिजिटल निगरानी का जदीद तरीन स्मार्ट निज़ाम नाफिज। माहौलियाती कॉन्फ्रेंस 2025 में पंजाब को नुमाइंदगी मिलना वज़ीर आला की काविशों का एतराफ़ है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब। मकबूजा जम्मू व कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के दौरान गुज़श्ता माह जुलाई में 7 कश्मीरियों को शहीद किया। भारतीय फौजियों और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने तलाशी और मुहासरे के दौरान 49 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया। भारतीय फौज की तरफ से ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से 51 कश्मीरी जख्मी हुए। काबिज इंतजामिया ने 22 कश्मीरियों के रहायशी मकानात, दुकानें और ज़रई अराज़ी जब्त कर ली। कश्मीर मीडिया सर्विस।
मोदी सरकार का ऑपरेशन सिंदूर का नाकाम दिफा, हिंदुत्व हामियों को मुतहर्रिक करने की कोशिश। बीजेपी ने लोकसभा में कौमी सलामती के संजीदा मसाइल पर बात करने के बजाय सियासी तमाशा बना दिया। मोदी सरकार लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की दिफाई बर्तरी से मुतालिक जवाब देने में नाकाम। 16 घंटे तवील बहस के इख्तिताम पर मोदी सरकार की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर का बेबुनियाद दिफा। भारतीय ऑपरेशन महादेव से जुड़े हकायक, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक। 28 जुलाई को होने वाले ऑपरेशन महादेव के नाम पर एक झूठा मुकाबला सामने आ गया। एनडीटीवी के मुताबिक श्रीनगर में 3 अफराद को ऑपरेशन महादेव में मारने का दावा किया गया। ऑपरेशन महादेव का हर पहलू मशकूक, शनाख्तों का तजाद जाली कार्रवाई की कलई खोलता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और फेक रिपोर्टिंग के जरिए मोदी सरकार पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के मंसूबे पर अमल पैरा है। फेक एनकाउंटर्स, मोदी सरकार की अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की नाकाम साजिश। कौम परस्ती के जुनून को हवा देने के लिए ऑपरेशन शिव शक्ति फेक एनकाउंटर्स की एक और किस्त। मोदी सरकार ने मसनूई बयानियां बनाने के लिए 2 बेगुनाह अफराद को LOC पर शहीद कर दिया। ऐसी कार्रवाइयां तनकीद को दबाने, बदउनवानी, महंगाई और पॉलिसी की नाकामी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। मोदी सरकार का बढ़ता हुआ जंगी जुनून। मोदी सरकार का एक मरतबा फिर खित्ते को जंग में धकेलने की तैयारी में मसरूफ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भारतीय वजारत दिफा की जानिब से जदीद दिफाई निज़ामों के अहम ऑर्डर्स मौसूल। समंदरी जारहियत के लिए जदीद मवासलाती और मैरी टाइम निज़ाम का हुसूल मोदी सरकार की मुनज़्ज़म साजिश। भारत की जानिब से जंगी सामान और इलेक्ट्रॉनिक आलात का हुसूल पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना तसादुम की तैयारी है। मुस्तकबिल के मेमारों को सलाम, हीरोज ऑफ पाकिस्तान को कौम का खिराज तहसीन। पाकिस्तान की अजीम कहानी सुनाने वाले कराची के उमर आदिल की दास्तान। बचपन से ख्वाब था कि ऐसी फील्ड में काम करूं जिससे अच्छा पैगाम दिया जा सके। माहौल को बेहतर बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्रीज पर काम किया। बेटी अमल उमर के नाम पर एक बिल पास कराया जो बाद में कानून बना। बच्चों पर तवज्जो देने के लिए राह अमल के नाम से ऑर्गेनाइजेशन कायम की। आप जहां कहीं भी हैं, उम्मीद न छोड़ें, आप ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। उमर आदिल। यौम आज़ादी मार्का हक, पाकिस्तान की आज़ादी की तारीखी कहानी प्रोफेसर मोहम्मद रियाज की ज़ुबानी। 14 अगस्त वो तारीखी दिन जब एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का ख्वाब हकीकत में बदला। ये दिन हमें हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों की याद दिलाता है। 11 अगस्त 1947 को कायद आज़म को दस्तूर साज असम्बली का पहला सदर मुंतखब किया गया। 14 अगस्त सुबह 9 बजे दस्तूर साज असम्बली को इक़्तिदार की मुंतकली हुई। यही हमारा यौम आज़ादी है। प्रोफेसर मोहम्मद रियाज। शहदाए वतन को सलाम। लसबेला में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे को 3 साल बीत गए। 1 अगस्त 2022 को पाक फौज के अफसरान ने लसबेला में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। दौरान परवाज हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी की वजह से हादसे का शिकार हो गया। हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर खालिद, पायलट मेजर सईद, मेजर तलहा और नायक मुदस्सिर फयाज शहीद हो गए। इस हादसे से हर आंख अश्कबार हुई। मुल्क की फ़ज़ा कई दिन तक सोगवार रही। जनूबी पंजाब, खित्ता पोठोहार, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। शदीद बारिश के बायस चकवाल, अटक, जेहलम, गुजरावाला, ननकाना साहब, दीर, सवात, शांगला, मानसेरा, कोहाट, करक, हंगू, टांग, डेरा गाजी खान के बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गलियात में लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक रवानी मुतासर होने का खदशा।